Question number 6. A farm paid rupees 25,000 as rent of its office and 15,200 as the interest of the loan taken to produce X units of a commodity. If the cost of production per unit is rupees 8 and each item is sold at a price of rupees 75, find the profit function and also find break-even point. These are the questions. Here that given the variable cost, that means VC per unit is rupees 8. Okay, because variable cost means the cost of production per unit rupees 8. Total variable cost means rupees 8 into X. X here is the X is the number of items. X is the number of items. তাহলে x into हो गया তাহলে 8x. The total variable cost equal to rupees 8x. SP per unit given के now each item is sold at a price of rupees 75. Clear? The total SP rupees 75 into number of items, that means 75x, which is called revenue function Rx. From this question we get VC variable cost per unit rupees 8. Total variable cost is VC of per unit into number of unit, that means for rupees 8x. Selling price per unit rupees 75. Therefore total selling price will be rupees 75 per unit into number of items, that means 75x, which is the total revenue, and it is called revenue function. Cost function will be TVC, total variable cost and fixed cost. दोनों सब अप करने के बाद हम लोग का cost function मिलता है. The cost function is TVC plus fixed cost. Total variable cost is 8x and fixed cost is 25,000 because farm paid 25,000 and rent of its office 15,200. यही होगा उसका फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, एक है क्या, ये है रेंट, ऑफिस का रेंट, एंड 15,200 इज द इंटरेस्ट ऑन लोन. ये देना ही है, इसीलिए दोनों फिक्स कॉस्ट का अंदर चला जाएगा. देयरफॉर द टोटल कॉस्ट विल बी 8x plus 40,200 rupees, but here is given the cost function, that why without unit we have to write 8x plus 40,200. This is a cost function. We know that profit function equal to Rx minus Cx. Revenue function minus cost function. दोनों को माइनस कर दो. So after subtracting this we get 67x minus 40,200. 40,200. Clear? So this is the profit function. So first, what was my first question? That is, you have to find out the profit function. Therefore profit function is this 67x minus 40,200. Clear? Next, the second question is find break-even point. So we know that for determining the break-even point we have to take profit function equal to 0. Just profit function will be 0. तो प्रॉफिट 0 होगा जिस प्रोडक्शन के लिए जितना नंबर प्रोडक्शन मेड. तो क्या है यहाँ पर x इज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन एट व्हिच द प्रॉफिट विल बी 0. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दोनों सेम. दैट प्रॉफिट फंक्शन विल 0. प्रॉफिट फंक्शन विल बी 67x minus 40,200. बस पुट कर दो. After solving that, x equal to 600. और break even point क्या होगा 600. Therefore break even point equal to 67x minus 40,200 minus 0. The break even point will be x equal to 600. Is that clear? Next, question number 7. Question number 7 কি বলছে? What does it say? Now, a company sells its products at the rate of rupees 10 per unit. Fixed cost
for the from the first line we get given SP per unit equal to rupees 10. Fixed cost for the company is 35,000 and variable cost is estimated to run 30% of the total revenue. 30% of total revenue. Therefore total revenue or total SP क्या होगा ना, रेवेन्यू फंक्शन आर इज इक्वल टू रेट ऑफ सेलिंग प्राइस रुपीज 10 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स 10 इंटू एक्स, दैट मीन्स হচ্ছে रेवेन्यू फंक्शन अथवा टोटल एसपी रुपीज 10x and therefore the variable cost will be total variable cost क्या, where does it say variable cost is estimated to run 30% of the total revenue 10x, total variable cost will be 30% of total revenue, that means 30% of rx, ठीक है, revenue function, तो 30 by 100 rx 10x लिखो 3x, मतलब कि total variable cost हमारा रुपीज 3x, ठीक है. The total cost function, what will be the total cost function? So here is the first answer. You have to find out the revenue function. Revenue function मिल गया क्या ना 10x, ये फर्स्ट आंसर है revenue function. Total SP means revenue function 10x. First answer. Second answer, the total cost function. Total cost function कैसे मिलता है? अदरवाइज cost function इक्वल टू की total variable cost plus fixed cost. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कितना मिला 3x और फिक्स कॉस्ट 35,000 बोल दिया. क्वेश्चन में देखो 35,000 इज द क्या फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी 35,000, दैट मीन 35,000. क्लियर? তাহলে 3x प्लस 35,000 ये हो गया टोटल कॉस्ट फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट. क्या बोला? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी मस्ट सेल टू कवर द फिक्स कॉस्ट. अर्थात फिक्स कॉस्ट कलेक्ट करने के लिए इफ यू वांट टू कलेक्ट फिक्स कॉस्ट, देन हाउ मच प्रोडक्ट यू हैव टू सेल इट, हाउ मच प्रोडक्ट यू हैव टू सेल. तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल फिक्स कॉस्ट फंक्शन हो गया टीबीसी प्लस फिक्स कॉस्ट 3x प्लस 35,000, फिक्स कॉस्ट 35,000 बोल दिया था, हम लोग लिख दिया. तो आप लिखा द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट सेल टू कवर ओनली द फिक्स कॉस्ट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कवरिंग फिक्स कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई एसपी पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? हियर इज द फिक्स कॉस्ट इज 35,000, क्वेश्चन में बोल दिया. Into the question it is given that the fixed cost is equal to 35,000 and SP per unit. ये भी हमारा क्वेश्चन में given, it is given that rupees 10, SP per unit rupees 10. तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा ना, टोटल फिक्स कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दो 3,500 यूनिट सेल करने के बाद, ठीक है, वही क्या करेगा ना हमारा फिक्स कॉस्ट फिर वापस आ जाएगा. कल हम लोग के आंसर क्या है 3,500. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया. नाउ इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जोड़ दिया. क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चन? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है ना, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन कंपनी neither loss or profit. That means profit function will be zero. So break even point क्या है ना, we have for break even point profit function px equal to 0. हमारा profit function कैसे मिलता है? profit function means revenue function minus cost function, मतलब total revenue minus total cost. तो total revenue हमारा क्या है 10x revenue function. cost function क्या है 3x minus 3 दिस, पहले हम लोग कर लिया, ठीक है. देखिए यहाँ पर देखो कॉस्ट फंक्शन है दिस और रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स पहले ही निकल गया था, क्या है 3x, ठीक है. पहले नहीं रेवेन्यू फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन हम गलत बोल रहा है,
रेवेन्यू फंक्शन कहाँ निकला, रेवेन्यू फंक्शन क्या है, आर एक्स इक्वल टू 10x, टोटल एस पी मीन्स रेवेन्यू फंक्शन, आर एक्स मीन्स 10x, रेवेन्यू फंक्शन 10x और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिस, तो दोनों को सबट्रैक्ट करना है, करने से मिलेगा 0, सॉल्व करने से x इक्वल टू 5000 मिलेगा। देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट विल बी x इक्वल टू क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट पहले क्या क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मिल गया ना, फिक्स कॉस्ट कलेक्ट करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई एस पी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट के अंदर कितना एस पी जा रहा है देखो, क्योंकि एस पी अपन 10 से डिवाइड कर 3500 यूनिट्स हमको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इतना सेल करना है, सेल करने के बाद हमको फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जोड़ा हम, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का हमको तो मालूम है, पहले सम्स में बहुत सम्स देखा, तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑकर्ड एट द की पी एक्स इक्वल टू 0, अर्थात प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू 0, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे मिलेगा ना, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू क्या है 10x माइनस टोटल कॉस्ट 3x प्लस दिस इक्वल टू ये, उसके बाद सॉल्व करने के बाद देखो x इक्वल टू 5000 मिल रहा है, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट x इक्वल टू 5000, अब तक हमारा प्रोडक्शन मस्ट बी 5000 और सेल भी मस्ट बी 5000, वेल देन our profit function will be 0 and that is the break even point x equal to 5000, clear। next question number 8 जो क्वेश्चन बोला, the company sells its products at the rate of ₹6 per unit, the variable costs are estimated to run 25% of the total revenue received, if the fixed costs are for the product is ₹4500, find the total revenue function, total cost function, the profit function, the break even point and the number of units the company must sell to cover its fixed cost। ये जो क्वेश्चन है, this question is 100% same to question number 7, therefore you take question number 8 as a homework कर लो, क्या है, इट इज सेम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हेल्प लेने से बाद विद टेकिंग द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर 8, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए पेन मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूसेस प्रोडक्शन बोनस to the workers that increases the cost of pens। प्रोडक्शन बोनस दे रहा है कंपनी, जो क्या है, प्रोडक्शन बोनस जब हम देगा तो क्या होगा, पेन का तो कॉस्ट ज़्यादा ही करना चाहिए, ठीक है। द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वाई पेन्स इज गिवन बाई सी वाई दिस इज, तो माने हियर इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फॉर वाई पेन्स, कितना पेन्स ना वाई पेन्स, तो हमने कॉस्ट फंक्शन बोल दिया 2.05y प्लस 550, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। इफ ईच पेन इज सोल्ड एट ₹3, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड डेली टू एंश्योर नो लॉस। बोलते जी मिनिमम एक नंबर बोलो, जो नंबर प्रोड्यूस्ड होगा एंड उससे सेल भी होगा, तखन देखा जाएगा जो हमारा कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रॉफिट फंक्शन मीन्स 0, प्रॉफिट फंक्शन मीन्स 0। तो बस हम प्रॉफिट फंक्शन ढूंढो पहले सम्स, तो क्या होगा, पहले गिवन क्या है, कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू सी वाई इक्वल टू दिस, क्वेश्चन में बोल दिया, ये देखो दिस y इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो सेल भी हो रहा है। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, आर वाई इक्वल टू क्या होगा ना, एक पीस कितना रुपया में सेल हुआ, ₹3 में सेल हुआ,
सेलिंग प्राइस, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, ₹3 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, दैट मीन्स वाई, 3y। द प्रॉफिट फंक्शन विल बी क्या, पी वाई इक्वल टू आर वाई माइनस सी वाई, कारण रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, बस वही करो, प्रॉफिट फंक्शन हमारा मिल गया, ए वाला प्रॉफिट फंक्शन। এখন क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन एनसीओ नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मीन्स प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू 0। no loss means no profit, no loss, that means profit function must be 0, profit function must be 0, therefore for revenue function minus cost function equal to 0, profit function ऐसे निकलता है। तो अब रेवेन्यू फंक्शन 3y है, पहले निकल गया, और कॉस्ट फंक्शन पहले भी मालूम है, लिख लिया, तो उसको माइनस कर लो, करने के बाद y इक्वल टू मिलेगा क्या, थोड़ा फ्रैक्शन में मिल रहा है, तो वही फ्रैक्शन को राउंड फिगर बना लिया, 579, क्या है, अप्रॉक्स 579, therefore for no loss minimum number of production daily is 579। तो जब लॉस नहीं कर सकेगा तो रेगुलर प्रोडक्शन हमको क्या करना चाहिए, 579 करना चाहिए। यही हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 30 प्राइस पर पीस व्हाट मस्ट बी ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेलिंग प्राइस थोड़ा चेंज हो रहा है, कल प्रॉफिट फंक्शन भी चेंज होगा, कल क्या होगा, नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो व्हेन एसपी इंक्रीज बाय 30 प्राइस पर पीएम, 30 प्राइस मीन्स कितना रुपीज़, ₹0.3 पर पीएम, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर लिखना है देयरफॉर न्यू प्राइस, न्यू एसपी कितना होगा, पहले वाला 3 था, उसके साथ 0.3 ऐड हो, यही होगा, न्यू एसपी होगा 3.3 प्लस 0.3, दैट मीन्स ₹3.3, क्लियर। यही यहाँ पर यूज़ कर रहा है 3.3, और एक एक पेन का न्यू एसपी क्या है, 3.3 है, 3.3 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स वाई, यही है टोटल रेवेन्यू हमारा मिलता है ₹3.3y, और रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू 3.3 इंटू वाई। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा ना, आर वाई माइनस सी वाई, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट फंक्शन निकाल लो। आप बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है ना, प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी 0, दस वाई मस्ट बी 0, वाई इक्वल टू 440, therefore the break even point y equal to 440। जब पेन का प्राइस, सेलिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा तो तब ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ हो गया, 440। तो इसका मीनिंग क्या है, ब्रेक इवन प्रोडक्शन हमको थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि जब 3 था तब ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, 579, 500 क्या 79 था। अब जब थोड़ा 0.3 मतलब 30 प्राइस ज़्यादा कर लिया तो हमारा प्रोडक्शन क्या है, क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट 440 है, तो 440 प्रोडक्शन 440 आइटम्स होना चाहिए, सेल भी 440 डेली होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है 3, इफ इट इज़ नोन that at least 500 pens can be sold daily. If it is known that at least 500 pens can be sold daily, what price company should charge per piece to guarantee no loss? Same but guarantee no loss. No loss means क्या है, no loss means profit function must be 0, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। मतलब क्या है, क्या बोला ना, इफ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट 500 पेन्स कैन बी सोल्ड डेली, दैट मीन्स 500 पेन्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड डेली, ठीक है। तो 500 पेन डेली यदि होगा तो अब प्राइस हमको क्या रखना चाहिए,
कंपनी का डायरेक्टर क्या बोल रहा है ना, तुम लोग को रेगुलर 500 पेन सेल करना है, 500 आइदर 500 प्रोडक्शन चालू रखना है। तो क्या होगा तब एसपी क्या होगा, तब ना हमारा नंबर ऑफ आइटम चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन और नंबर ऑफ आइटम्स विच आर सोल्ड वाई इक्वल टू 500, ठीक है। और एसपी पर पेन भी क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, वही तो मांगा जी जब 500 प्रोडक्शन होगा 500 सेल होगा तब लॉस भी हमारा कोई लॉस भी नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तब हमारा एसपी क्या होना चाहिए। तो एसपी को पकड़ लिया, एसपी पर पेन बी ₹x। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, आर वाई इक्वल टू क्या होगा ना, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स क्या है वाई व 500। तो रेवेन्यू फंक्शन होगा ₹x पर पेन का कॉस्ट इंटू वाई, ठीक है ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये 500 मतलब क्या होगा x इंटू 500, तो हमारे 500x ₹500x हो गया। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन होगा जो पहले जो था, कॉस्ट फंक्शन क्या है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो हमको तो मालूम ही है, पहले जो था कंपनी का वही होगा। तो 2.05y प्लस 550 है ना, यही तो हमारा कॉस्ट फंक्शन था CY बस। लेकिन यहाँ पर y क्या है, वेरिएबल कॉस्ट तो थोड़ा चेंज होगा, जब जितना नंबर आइटम प्रोडक्शन होगा उस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट। जब पहले यहाँ पर बोल दिया ना 500 प्रोडक्शन हो रहा है, पहले 500 क्या लिखे y की जगह 500 लिख दो, पहले हमारा CY मिल गया। तो C500 इक्वल टू दिस, तो हमें क्या मिला है कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू 1575 बस मिल गया। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा ना, आर रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या है 500x, कॉस्ट फंक्शन क्या है 1575 माइनस करते सेम प्रोसेस। होगा दिस इक्वल टू मास्ट बी 0, कारण नो लॉस मीन्स PY 0, PY इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा देखो 315/100 3.15, ठीक है। तब ना हमको क्या करना चाहिए, जब 500 हमारा प्रोडक्शन होगा और 500 सेल होगा डेली, तब हमारा सेलिंग प्राइस करना चाहिए 3.15 मतलब ₹3.15। पर SP per pen when at least 500 pen can be sold is ₹3.1। This is the answer, ठीक है, this is the answer। पहले क्या हुआ प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू क्या होगा हमारा यही है 1575। प्रॉफिट फंक्शन विल बी RY माइनस CY, दैट मीन्स RY इज 500 आइटम का रेवेन्यू फंक्शन बा टोटल एसपी दिस 500x माइनस कॉस्ट फंक्शन होচ্ছে 1575, y की जगह में 500 पुट का जो मिला बस यही है हमारा प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट मस्ट बी 0 व्हेन नो लॉस, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। चलो पी दिस इक्वल टू 0 सॉल्व करना, x इक्वल टू क्या होना 3.15। x क्या लिखा, हम क्या पकड़ लिया था हम लोग, x पकड़ लिया था SP पर पेन, क्या पकड़ लिया था SP पर पेन बी ₹x, ठीक है। मतलब हमारा जब प्रोडक्शन 500 होगा तब तो हमारा एक एक पेन को 3.15 से सेल करना है, ठीक है। वी हैव टू सेल per pen at ₹3.15 when our production and also selling per day will be 500, and this will be the answer. Thank you. Next question number 10. Please subscribe and comment us online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrance and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number or email address or comment.